Welcome. Welcome to today's practice session on shear force and bending moment diagrams. Good evening, Devi Karan. Good evening. Good evening, Utkarsh. Okay. Good evening, Amin. Good evening, Shubham. तो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ shear force and bending moment diagram. आज हम लोग shear force और bending moment diagram के प्रॉब्लम्स करने वाले हैं. गुड इवनिंग कृष्णा. गुड इवनिंग राजन. shear force and bending moment diagram के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स तो हम लोग ऑलरेडी YouTube की क्लास में कर चुके हैं, बट कुछ एक प्रॉब्लम्स जो है और रह गए हैं, प्रैक्टिस करना है. ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं. तो उसी सीक्वेंस में वी हैव दिस प्रैक्टिस सेशन ऑन shear force and bending moment diagram. ठीक है बेटा. कुणाल, मशीन डिजाइन के एक्सेल शीट्स में सारे नोट्स बने हुए हैं, वहां पे सब कुछ अवेलेबल है. अगर आपसे नहीं हो पा रहा है डाउनलोड तो फिर आप रहने दीजिए. आपको एक्सेल शीट जो है पूरी ऑर्गेनाइज बना के दी हुई है मैंने. उसके बाद आप बोल रहे हो टेलीग्राम पे भी डाल दो, आपके घर का एड्रेस दे दो, मैं प्रिंट आउट निकाल के कुरियर कर देता हूँ. ठीक है बेटा. क्योंकि अपने को तो बचपन से आदत है हर चीज मुंह में लाके जब तक घर वाले नहीं देते हैं अपने से चबाया नहीं जाता है ना. ठीक है बेटा. ओके. वो कहावत सुनी है ना, जिन जो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते उनकी मदद भगवान भी नहीं करता है. ओके. ऑल राइट बेटा. दोज ऑफ यू डोंट नो अबाउट आवर schedule right now on YouTube, we have launched recently 2 courses. One is the crash course which started from 1st of October, and usme I started strength of material 7:30 p.m. to 9 p.m. Monday to Friday. And then we have recently launched a weekend batch starting from 10th of October. Last week हमने ये चालू किया है. The classes will be only on Saturdays and Sunday. This is for second year and third year students. स्पेशली सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए लॉन्च किया गया है. एंड द क्लासेस आर फ्रॉम 7 PM to 10 PM ऑन सैटरडेज एंड संडेज ओनली. यहाँ पे भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चालू हुआ है. तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, इफ यू वांट टू कंप्लीट द सिलेबस एज सून एज पॉसिबल, then this is the batch for you. And if you want to take your time, if you want to build concepts, if you want to make your concepts even stronger, then this is the batch for you. Okay. So depending upon कि आपका aim क्या है, whether you are preparing for 21 or 22 or 23, you can join the batch which you want. ठीक है. थैंक यू सो मच शुभम. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. तो बेटा एक्सेल शीट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई है. ठीक है. I have already uploaded the Excel sheet on tinyurl.com/approved10. You can just go to this website and you can find all these Excel sheets of different subjects where I have organized all the lecture notes. मैंने सारे lecture notes, even DPP के links भी मैंने इन्हीं Excel sheets में update की हुई है. So you just open this and enjoy the lectures. You can download the PDF. ठीक है. Is it clear? Thank you so much Utkarsh. Thank you so much Ayush. Okay. So beta let the session begin. Session start करते हैं. Let's start solving problems. And those of you who don't want to miss any of my lectures, please join the Telegram channel right now. जितने भी लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल जो है वो जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन कर लो, क्योंकि कई बार मेरे को बच्चे बोलते हैं कि आपकी डीपीपी की लिंक नहीं मिल रही, आपकी यूट्यूब क्लास की लिंक नहीं मिल रही. सो इफ यू डोंट वांट टू मिस any of my classes, then please join this Telegram channel. Okay, I am providing the link for you. तो आप लोग तुरंत ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और you will never miss my class. Okay. Now let's start the session with the first question based on internal hinge. So this is the first question in front of you. The maximum shear force in the beam shown in figure is. Now in order to calculate the maximum shear force, we need the reactions. Okay. And in order to find the reactions, what do we need to do? Abita, in the YouTube class, we have solved propped cantilever beam with internal hinge. This is a continuous beam with internal hinge. है कि नहीं? ये continuous beam है
with internal hinge. So the question is a little different than that. Okay. Now, beta, in order to solve this problem, what you need to do, there will be three reactions: RA, RB, and RD. Again, and in तीन reactions को निकालने के लिए we need three equations. Okay. So beta, what will be those equations? Understand. Summation of Fy equal to 0. That will be my one equation. Summation of M equal to 0. That will be my second equation. And we need to take the bending moment at C and equate with 0. That will be my third equation, है ना? तो बेटा उस third equation से I can calculate RD easily. Bending moment at internal hinge must be 0, right? That is my third equation. So bending moment at C को 0 से equate करके I can find RD. So quickly tell me what is RD? Bending moment at D equal to 0. तो बेटा अगर मैं RD का मोमेंट ले लूं C पे, it will be RD multiplied by 3 minus UDL का मोमेंट हो जाएगा 10 into 3 multiplied by 1.5. So how much is RD? Thank you so much Krishna. Thank you so much. तो बेटा RD की वैल्यू क्या आ रही है? 15 किलो न्यूटन. RD is 15 किलो न्यूटन. Yes, very good. So beta, we have got the value of RD. Now we need to find RA and RB. So can I find RB by taking moment at A? A पे moment लेके RB निकल जाएगा. A पे moment लेंगे तो we will get the value of RB. Yes. Take moment at A. Take moment at A. What you are going to get? You are going to get RB multiplied by 2. Then plus RD यानी कि 15 multiplied by 8. इन दोनों का मोमेंट होगा नेगेटिव. सो माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस यूडीएल का मोमेंट हो जाएगा 10 into 3 मल्टीप्लाइड बाय, यहां सेंटर से लेके ए तक का डिस्टेंस विल बी 6.5 इक्वल टू 0. सो व्हाट विल बी आरबी? व्हाट विल बी आरबी? गिव मी द आंसर. व्हाट विल बी आरबी? 30 plus 30 into 6.5 minus 15 into 8 divided by 2, 52.5. Very good, very good. 52.5. Now beta, we have got RD, we have got RB. So can we calculate RA from summation of Fy equal to 0? Summation of Fy equal to 0 लगा के RA मिल जाएगा. Apply summation of Fy equal to 0. What you are going to get? RA plus RB plus RD equal to 15 plus 30, है ना? RA plus RB plus RD equal to 15 plus 10 into 3. So here, what is RA? Can anyone tell me what is RA? Can anyone tell me what is RA? Minus 22.5. अब minus 22.5 का मतलब क्या है बेटा? What do we mean by minus 22.5? Means my direction of RA is wrong. Direction of RA is wrong. So beta, this will be opposite. तो इसको ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, है कि नहीं? अच्छा, इसको यहां ऐसे ही रहने देता हूं मैं, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड आफ्टरवर्ड्स, है ना? अब बेटा, वी नीड टू ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम. ओके, नाउ वी नीड टू ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम. सो आई विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द बीम क्विकली. प्लीज ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम एंड फाइंड आउट व्हाट विल बी द मैक्सिमम शियर फोर्स. जल्दी से निकाल लो. जल्दी से निकाल लो. सी से डी तक यूडीएल और फिर डी पे आरडी. यूडीएल को कैन आई मेक लाइक दिस? ऐसा बना दे जल्दी बनाने के लिए, है ना? ये हो जाएगा आपका 22.5. दिस इज 15.
What is RB? 52.5. This is 10 kilonewton and this is 15, 10, 2 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर ना। ठीक है। यस, ठीक है। ओके, नाउ बेटा ड्रॉ द shear force diagram A, B, C and D. shear force diagram बनाओ फटाफट। So this is my datum line. This is my datum line. Okay, 22.5. It will go downward, right? फिर A से B तक it will remain constant. अब B पे what is the net force? B पे net force कितना है? 52.5 upward, 15 downward. So how much is net force? 37.5 upward. So 37.5 और minus 22.5 कितना होगा? 15. Then यहां से यहां तक constant. Then 15 minus 30 minus 15 and then 0. तो बेटा ये है minus 22.5, 15 minus 15. This is the shear force diagram. So maximum shear force is how much? Maximum shear force is 22.5 kilonewton. Now beta I will ask a question. Let's see how many of you can answer. Okay, simple question. Will there be a point of contraflexure in this question? Will there be a point of contraflexure? क्या यहाँ point of contraflexure आएगा? Yes, आएगा और वो भी एक से ज्यादा बार आएगा. Yes, yes, yes. Why? First of all, there is an internal hinge, and I told you yesterday, at the internal hinge there will be point of contraflexure, है कि नहीं? Yes, very good बेटा, very good, very good, very good. बहुत बढ़िया श्रीनिवास, कृष्णा, शुभम, very good, very good, very good मयूर, very good सूरज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, very good, very good आयुष, बहुत बढ़िया. तो आप लोगों को याद है, बहुत अच्छी बात है. I told you yesterday in class, if there is an internal hinge, there will be a point of contraflexure there. Okay. And second thing, point of contraflexure will be here because of one more reason. दूसरा reason क्या है point of contraflexure का? What is the second reason? तुरंत बताओ, second reason why there will be a point of contraflexure here. Because shear force diagram is changing sign how many times? Yes, very good, 2 times. And we all know if shear force changes sign 2 times, bending moment will change sign 1 time. ये awesome concept आपको ना किसी बुक में मिलेगा और ना किसी और लेक्चर में मिलेगा, right? You might have never heard this, right? ये वाला awesome concept which we can apply in order to find whether there is point of contraflexure or not, right? Yes, yes, very good, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. So बेटा this is continuous beam with internal hinge. तो internal hinge के questions बन जाएंगे. We have seen propped cantilever with internal hinge. This is continuous beam with internal hinge. Now बेटा after the lecture ends, try to draw the bending moment diagram also. ठीक है, lecture खत्म हो जाएगा तो इसका bending moment diagram भी एक बार आप draw करके देखना. ठीक है, चले next question. Okay. now beta solve this question. Now this is also an interesting question. Maximum bending moment for the beam shown in figure is. अब बेटा देखो interesting question. क्या है interesting question? There is an upward UDL, there is a downward UDL. ठीक है, सिर्फ UDL है. There is no point force. There is an upward UDL, there is a downward UDL. ठीक है.
अब बेटा in order to calculate the maximum bending moment, first you need to find what will be the load intensity of upward UDL. इस upward UDL का load intensity अभी मेरे को नहीं पता है कि नहीं? So beta we need to find this load intensity. How can we find this load intensity? Can anyone tell me quickly? How can we find the load intensity? जल्दी बताओ कैसे निकाल सकते हैं? How? Yes, net force must be equal to 0. Yes, very good beta, very good, बहुत बढ़िया. Net force must be equal to 0. So beta this will be W multiplied by कितना distance? 3.2 equal to 3000 multiplied by 1.6. So how much is W? How much is W? 1500 Newton per meter और 1.5 kilonewton per meter, है ना? Yes, 1500 Newton नहीं रे बाबा, 1500 Newton per meter. This is load intensity, not the load. ठीक है? Now, बेटा first of all, where will you get the maximum bending moment? यहाँ maximum bending moment कहाँ पे आएगा? Understand this very simple concept. There is symmetric loading here. There is symmetric loading here. और अगर यहाँ symmetric load लग रहा है, then maximum bending moment will be at the center. At the center, maximum bending moment will be at the center. तो बेटा center पे आप निकाल सकते हो बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? Can we calculate the maximum bending moment at the center? Yes. Let's say this is the center. ठीक है, मान लो ये अपना सेंटर है. ठीक है, let's say this is C point. So maximum bending moment will be at the center. Okay. So what will it be? कितना हो जाएगा सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट? UDL अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. तो 1500 इंटू ये हो जाएगा 1.6 इंटू 0.8 है कि नहीं, माइनस 3000 इंटू 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.4. तो कितना आ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट? हाउ मच आर वी गेटिंग? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 1500 इंटू 1.6 इंटू 0.8 minus 3000 into 0.8 into 0.4. How much? 960 Newton meter. Are we all getting this answer? Yes. Very good, very good. बहुत बढ़िया. So are you guys getting this? सबका आ गया? सबका आ गया? यस, चलो बहुत बढ़िया. So shall we move on to the next question? Next question की तरफ चलें. चलो. Now this is a conceptual question. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. And if you get the concept right, you can solve it like this. Okay, I will tell you how to solve it like this. ठीक है, मैं ऐसे solve करना इसको सिखाता हूँ. ठीक है, a beam ABC has simply supported span AB and overhanging span BC. ठीक है, bending moment diagram for the beam is given in the following figure. The loading for the beam would correspond to, means we have the bending moment diagram. We have the bending moment diagram. We need to find what will be the loading diagram. Thank you so much, Abhijit. We need to find what will be the loading diagram. Bending moment diagram से अपने को पहचानना है कि इसका loading diagram क्या होगा. ठीक है. Now बेटा, these type of questions are really interesting. Why? Because here you need to apply logic in order to find out what will be the loading diagram. You don't need to draw the entire diagram. आप loading diagrams को एक एक करके check कर सकते हो. Which one will fit to this diagram? Okay. इस type के problem में the best method will be the
elimination method. One by one, you eliminate the wrong options. Is it clear? Check all the options. Options को check करो, options को check करो, कौन सा सही आंसर हो सकता है. ठीक है. अब यहाँ पे लॉजिक लगाना है बेटा, और लॉजिक लगा के आप आराम से निकाल सकते हो कि आंसर क्या होगा. ठीक है, आपको लॉजिक लगाना है. लेट्स सी हु कैन अप्लाई द लॉजिक हियर. लेट्स सी हु कैन अप्लाई द लॉजिक हियर. बताओ क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर. एक झटके में आई कैन टेल व्हाट विल बी द आंसर. ओके ओके. ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी. नाउ व्हाई द करेक्ट आंसर इज सी, लेट्स अंडरस्टैंड. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. हियर you can see that in all the options the force at A is upward, है ना. मतलब the sign convention used in this problem is this. ये वाला आपको पॉजिटिव मोमेंट दिया हुआ है. दिस मोमेंट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, है कि नहीं. यस, देन ओनली वी आर गेटिंग दिस पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ना, है ना. तो बेटा लेफ्ट से ये वाला मोमेंट पॉजिटिव है, राइट से ये वाला मोमेंट पॉजिटिव होगा. अब राइट से इफ आई सी देन द बेंडिंग मोमेंट इज नेगेटिव, राइट. So beta, in all the other options, here and here, the force is acting upward, so it will create a moment like this. तो इन तीनों के हिसाब से बेंडिंग मोमेंट शुड बी पॉजिटिव. बस एक ही ऑप्शन है जहां पे बेंडिंग मोमेंट विल बी नेगेटिव, राइट. हाँ कि ना, हाँ कि ना. यस, सिंपल था. बाकी तीनों ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ये राइट से फोर्स जो है वो अपवर्ड है. So this will create a positive, this should create a positive bending moment according to sign convention. But beta the bending moment is negative. तो एक ही ऑप्शन है, this will create negative bending moment. ठीक है. So beta whenever there is this type of problems, always use option elimination. ठीक है. ऑप्शन एलिमिनेशन हमेशा करके चेक किया करो कि ये वाला फिट बैठेगा कि नहीं, ये वाला फिट बैठेगा कि नहीं, ये वाला फिट बैठेगा कि नहीं. ओके, एंड हाउ यू कैन डू दैट, यू नीड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑल द डायग्राम्स. इन सब डायग्राम में एक ही डिफरेंस, मेजर डिफरेंस था कि बाकी सब में W/2 was upward, here W/2 was downward. So beta you need to check whether this is correct or not. Is it clear? Yes. तो आगे बढ़े. चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So this is another interesting question. Maximum bending moment for the beam shown in figure is. This is an overhanging beam with a couple at the end. Okay. तो बेटा आप सबसे पहले क्या करोगे? What was the criteria for getting maximum bending moment? There are two criteria. Either there should be a couple. तो couple तो है C point पे. So we can get maximum bending moment at C, right? Or we can get bending moment if the sign of shear force is changing. वहां पे भी आ सकता है. अब यहाँ पे साइन चेंज होगा कि नहीं बेटा? दिस इज एन ओवरहैंगिंग बीम, तो साइन तो चेंज होगा ही, ऑफ कोर्स, राइट. ऑफ कोर्स साइन विल चेंज. साइन किसमें चेंज नहीं होता? साइन किसमें चेंज नहीं होता? साइन ऑफ shear force नेवर चेंजेस इन व्हाट? इसमें
कैंटिलीवर में नहीं होता, सिंपली सपोर्टेड में भी होता है और ओवरहैंगिंग में भी होता है, ठीक है। तो बेटा नाउ वी नीड टू फाइंड द रिएक्शंस इन ऑर्डर टू फाइंड वेयर द शियर फोर्स विल चेंज इन साइन। तो बेटा वी नीड टू फाइंड द रिएक्शंस। तो रिएक्शंस निकालने के लिए टेक मोमेंट एट ए पे मोमेंट ले लो बेटा, फाइंड द टेक द मोमेंट एट इट एंड फाइंड द रिएक्शंस। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, RB multiplied by 3.2 plus 3 minus 1.2 into 1.6 into 0.8। या इसको मैं इक्वल टू कर देता हूं, 1.2 into 1.6 multiplied by 0.8। So how much is RB? How much is RB? माइनस 0.4575। अच्छा वो 12 है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज 12, सॉरी दिस इज 12, I was taking it 1.2, sorry, my mistake। 3.86, RB is 3.86, and if RB is 3.86, what will be RA? 15.34 है ना। टोटल लोड माइनस RB विल गिव यू RA। तो RA RB मेरे को मिल गया, RA 15.34 and RB 3.86। Now I can draw the shear force diagram। अब मैं shear force diagram ड्रॉ कर सकता हूं, राइट। तो shear force diagram क्विकली ड्रॉ कर लो, shear force diagram क्विकली ड्रॉ कर लो। Draw the shear force diagram quickly and check where the shear force is changing sign। shear force sign कहाँ चेंज कर रहा है ये क्विकली चेक कर लो। तो A पे it will go up to 15.34, then B पे it will go up to minus 3.86 है ना। 15.34 minus 12 into 1.6, अच्छा है ना, minus 12 into 1.6, 3.86। then from here to here it will remain constant, then it will become 0, और फिर यहां से यहां तक it will remain 0, है कि नहीं। तो बेटा shear force is changing sign here, shear force is changing sign here। अब can I calculate exactly where shear force is changing sign? क्या मैं ये बेस निकाल सकता हूं? Can I calculate this base x? Yes, I can calculate। Either you can apply similar triangle, or beta you also know that the shear force at this point must be 0। Let me call this point, ये point है A, ये B, ये C, let me call this point D। So shear force at D is 0। I know shear force at D is 0। What will be shear force at D? 15.34 minus 12x। What is x? x कितना आ गया? 15.34 divided by 12, 1.27। So now can I calculate the bending moment, maximum bending moment? How I can calculate maximum bending moment? You know the awesome approach। आपको मैंने एक बहुत बढ़िया अप्रोच बताया था, remember? How we will calculate it? कैसे निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट डी? कैसे निकालेंगे? यस, एरिया इस एरिया से निकाल सकते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट डी विल बी इक्वल टू हाउ मच? md minus ma equal to this area, half into 1.27 into 15.34। now this is 0, ma is 0,
So I will get MD कितना आ रहा है 0.5 into 1.27 into 15.34. How much? 9.74 kilonewton meter. Are you getting this? 9.74 kilonewton meter. This is your maximum bending moment. है ना? जहां पे कपल लग रहा है वहां पे बेंडिंग मोमेंट विल बी 3 and here bending moment is 9.74. So maximum is this. है कि नहीं? Is it clear? Is it clear? Is it clear? Yes, very good. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. So is this clear to everyone? ये क्लियर है सबको? ठीक है. So next question देखें. Shall we move on to the next question? Yes. चलो. Next question में चलते हैं. Now beta, this type of question we have already solved, but this is a little different. Shear force diagram for a beam is shown in figure. Assuming there is no couple acting on the beam, the maximum bending moment in the beam is. So we have the shear force diagram and we need to find maximum bending moment. तो कैसे निकालेंगे? How we will calculate the maximum bending moment? बेटा bending moment can be maximum where? Bending moment कहाँ maximum हो सकता है? Bending moment कहाँ maximum हो सकता है? Yes, Navneet, you are right. Bending moment will be maximum where shear force is changing sign. They have already mentioned that there is no couple. तो couple तो है नहीं, तो जहां shear force का sign change होगा, तो एक यहाँ change हो रहा है ना? And let me take this point as E. तो एक change हो रहा है C पे, एक E पे. अब C का बेंडिंग मोमेंट तो आप बिना देखे बता सकते हो. C का बेंडिंग बिना सॉल्व किए बता सकते हो. What will be the bending moment at C? C पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? यस, वेरी गुड, 12. अब तक तो सबको ये ऑसम कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में बैठ गया होगा, राइट? अब तक यू माइट हैव ऑलरेडी नो कि ये कैसे आ रहा है कि नहीं? तो 12 तो सबको अब समझ में आ गया. सी पे तो सीधे सीधे 12 है, तो अब बस यहां निकालना है. नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस आई नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस, राइट? तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? लेट मी टेक दिस x. तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस एक्स. तो बेटा अब बस सिमिलर ट्रायंगल लगा दो एंड फाइंड आउट दिस x. तो x बाय 27 इक्वल टू 2 माइनस एक्स बाय 13. तो यहां से x निकाल लो. कितना आ रहा है? हाउ मच आर वी गेटिंग? कितना आ रहा है? 1.35 मीटर. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. So beta, now you have x. So can you calculate bending moment at E? Half into 1.35 into 27. ये हो गया आपका 0. तो ME कितना हो गया? 0.5 into 1.35 into 27. कितना? 18.225 किलो न्यूटन मीटर. तो यही मैक्सिमम हो गया. यही मैक्सिमम हो गया. यही मैक्सिमम हो गया. यस, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. कैन वी फाइंड बेंडिंग मोमेंट एट ई फ्रॉम राइट साइड? कैसे निकाल लेगा मेरे भाई? राइट साइड लेफ्ट साइड से कैसे निकाल लेगा? कैसे निकाल लोगे बताओ? बिना इस डिस्टेंस के कैसे निकाल लोगे? डिस्टेंस तो निकालना ही पड़ेगा ना. तुम भी यार मतलब अजीब टाइप बात कर रहे हो. और राइट साइड से क्यों निकालोगे? लेफ्ट साइड से इतना एरिया कैलकुलेट करना आसान है, तुम राइट साइड से ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना चाहते हो. मतलब इंस्टेड ऑफ ऐसे कान पकड़ने के तुम ऐसे घूम के कान पकड़ना चाहते हो. तो ठीक है, कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है. सो बेटा, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब बेटा, कैन एनीवन क्विकली टेल मी, विल देयर बी एनी चेंज इन साइन? यहाँ पे चेंज इन साइन ऑफ बेंडिंग मोमेंट होगा क्या? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होगा क्या? Will there be a point of contraflexure? Yes, yes, very good, very good. Why? Because the shear force diagram is changing sign twice, so bending moment diagram will change at least sign once. ठीक है?
यस। अरे यार राजन, अभी सब एक सुर में बोल रहे हैं देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एंड यू आर सेइंग नहीं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। बोल रहा हूं मैं कि देयर इज टू टाइम्स द shear force is changing sign two times, bending moment will change sign one time, फिर भी नो। ठीक से सुनो क्लास, ठीक से सुनो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब बेटा ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अ प्लैंक एडी फ्लोट्स ऑन वाटर विथ 2 पर्सन ऑफ वेट ईच, ये 2 है, ठीक है, विथ 2 पर्सन ऑफ वेट ईच स्टैंडिंग ऑन इट एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑन द प्लैंक। कैन यू सॉल्व दिस? कैन यू सॉल्व दिस? यस। तो बेटा इसको करना कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द प्लैंक। प्लैंक का डायग्राम ड्रॉ करो। तो ये अपना प्लैंक है। देयर आर 2 पीपल स्टैंडिंग ऑन इट, ठीक है। एक इधर चढ़ा हुआ है, एक इधर चढ़ा हुआ है। नाउ देयर इज अ सपोर्ट बाय द वाटर, ओके। Which one is supporting the weight of the plank? Water. And the weight of the, sorry, the force by water can be considered as UDL. Yes, जो buoyancy force लग रहा है water का, उसको मैं UDL consider कर सकता हूँ. I can consider it like a UDL, है ना? So बेटा, if I consider it like a UDL, can I calculate the load intensity of this UDL? Can I calculate the load intensity of this UDL? लोड इंटेंसिटी निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? हाउ वी कैन कैलकुलेट इट? फ्रॉम समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, है ना। तो यहां पे दिस इज W, दिस इज W, ठीक है। तो बेटा स्मॉल w निकल जाएगा। समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 से आई कैन राइट WL इक्वल टू 2W। तो स्मॉल w हो गया 2W बाय L, है ना। Let's say this is point A, point B. Let me consider the center as C, D, E. ठीक है, all these distances are L by 4, L by 4, L by 4, L by 4. अब बेटा अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है। मतलब ये वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, बट दिस डायग्राम ओवरहैंग बीम विद यूडीएल, ये ओवरहैंग बीम ही है ना, उल्टा कर दिया है। ओवरहैंग बीम विद यूडीएल एंड इक्वल ओवरहैंग ऑन बोथ साइड्स। इस टाइप का प्रॉब्लम इज वेरी 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 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, ओके। अब इस टाइप के प्रॉब्लम में होता क्या है, अंडरस्टैंड, ओके। इफ यू ड्रॉ द shear force diagram, you will see that the sign of shear force changes twice. अब यहां पे देखो, एटलीस्ट 2 बार shear force का साइन चेंज होगा, वैसे तो 3 बार होगा, ठीक है। ड्रॉ द shear force diagram, draw the shear force diagram. I want you to understand one thing. Draw the shear force diagram, draw the shear force diagram. So shear force at A is 0, है ना। A पे shear force 0 है, B पे shear force की वैल्यू क्या होगी बेटा? 2W by L into L by 4, कितना हो जाएगा? W by 2। फिर W डाउनवर्ड, तो ये जाएगा -W by 2। फिर यहाँ पे ये कुछ ऐसा जाएगा, फिर ये कुछ ऐसा जाएगा, फिर यहाँ पे ये कुछ ऐसा जाएगा। द डायग्राम विल बी लाइक दिस। shear force diagram will be like this: 0, 0, W by 2, minus W by 2, minus W by 2, W by 2. So beta, how many times shear force is changing sign? 3 times. So beta, here the bending moment can be maximum at B, C or D. B और D पे तो you will get equal bending moment, है ना। B और D पे तो इक्वल बेंडिंग मोमेंट आएगा ड्यू टू सिमेट्री।
सिमेट्री है, तो बेटा आई नीड टू चेक बेंडिंग मोमेंट एट बी एंड बेंडिंग मोमेंट एट सी। अब ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, कैन यू सी दैट दिस एरिया एंड दिस एरिया आर इक्वल एंड ऑपोजिट? ये दोनों एरिया इक्वल एंड ऑपोजिट है ना, ये दोनों एरिया इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो बेटा व्हाट विल बी द बेंडिंग मोमेंट एट सी? बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना होगा? These two areas are equal and opposite, so what will be bending moment at C? Zero. Zero, yes, bending moment at C will be zero. Beta, this area plus this area will be equal to the bending moment at C. The bending moment will be zero. So where will you get maximum bending moment? Maximum bending moment kahan milega? Bending moment will be maximum where? B पे, B और D both will have same bending moment. M maximum will be MB और MD, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? कैलकुलेट द एरिया, इट विल बी हाफ इंटू L/4 इंटू W/2. तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू हाउ मच? WL/16, right? Very good, very good, very good. Is the logic clear to everyone? क्या सबको लॉजिक क्लियर है? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. So shall we move on to the next question then? चलो अब बेटा solve this question. This is an interesting question. The reaction force at end A is, and we have a sinusoidal distributed load. यहाँ पे there is a distributed load and the equation of the curve is sinusoidal. आपको एक साइन कर्व दिया हुआ है ना? Now beta understand, we need to find the reactions. Okay. अब एक बात बताओ, this is a symmetric load. सिमेट्रिक लोड है, सिमेट्रिक लोड है ना? So if this is a symmetric load, then the reactions will be equal. दोनों रिएक्शन बराबर आएंगे, right? And if both the reactions will be equal, then their value will be half of total load. Reactions will be half of total load, है ना? जितना भी टोटल लोड लग रहा है, आधा इधर आधा इधर, right? Half here, half here. Total load will be half here, half here. So if I calculate total load and divide it by 2, then I will get the reaction. है कि नहीं? अगर मैं टोटल लोड निकाल के आधा कर दूं तो रिएक्शन मिल जाएगा. तो बेटा टोटल लोड कैसे निकालेंगे? हाउ वी विल गेट टोटल लोड? By integrating this curve, we need to calculate the area. So if I integrate this curve, I will get the area. So integrate it and calculate total load. कितना आ रहा है? Calculate the total load. What is the total load? What is the total load? कितना आ रहा है total load? Total load is how much? टू डब्ल्यू नॉट एल बाय पाई आ रहा है टोटल लोड. Is the total load 2W naught L by pi? Is everyone getting this? Total load 2W naught L by pi. सबको इतना मिल रहा है? Yes. So beta, if total load is 2W naught L by pi, then what will be the reaction? Reaction कितना हो जाएगा? Reactions will be W naught L by pi.
यस, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये क्लियर है सबको? दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? यस, सो लेट्स मूव ऑन। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने आपको बोला था दिस क्वेश्चन इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, दिस इज लाइक अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर्स। ओके, एग्जामिनर्स का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपको बहुत सारे एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स दिखेगा। ओके, वी हैव एन ओवरहैंगिंग बीम subjected to UDL, okay, and they ask you to find the distance for which bending moment at center will be 0. तो बेटा ऐसे केस में द बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर विल बी 0 if this distance and this distance is how much? L/4 and L/4. अब भी मैंने अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा ना मेरे भाई, इस क्वेश्चन में दिस ओवरहैंग वाज L/4, द बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर वाज 0 ना, है कि नहीं? हाँ कि ना? यस, तो बेटा आपको 0 बेंडिंग मोमेंट कब मिलेगा? व्हेन दिस इज L/4, दिस इज L/4. इज इट क्लियर? अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूं। शैल आई ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ दिस बीम? डू यू वांट टू सी? चलो, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है बेटा वो कुछ ऐसा बनता है। ओके, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द बीम लुक समथिंग लाइक दिस। It will be a symmetric diagram. Okay, let me call it A, B, C, D, E. तो ये हो गया A, B, C, D and E. So this is bending moment diagram. Do you understand this? Yes. Now understand बेटा, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो। If I change this distance, if I change this distance, then the bending moment at center will not be 0. है कि नहीं? हाँ कि ना? अगर मैं ये डिस्टेंस को चेंज कर देता हूं तो बेंडिंग मोमेंट जो है ये 0 नहीं होगा। सो इफ आई डिक्रीज दिस डिस्टेंस, इफ आई डिक्रीज दिस डिस्टेंस, अगर मैं ये डिस्टेंस जो है L/4 से कम करता हूं तो होगा क्या? ये वाला बेंडिंग मोमेंट जो है ऊपर जाएगा, ये वाला बेंडिंग मोमेंट भी ऊपर जाएगा। ठीक है, मतलब इन दैट केस द बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर विल बिकम पॉजिटिव, and if I increase this distance then the bending moment at center will become negative. ठीक है, तो आपको अलग अलग टाइप के डायग्राम देखने को मिलेंगे। सो आप इस डिस्टेंस को जैसे जैसे चेंज करोगे ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी चेंज होता जाएगा। मतलब एक केस में ये ऐसा बनेगा। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम इन ऑल द केसेस। ठीक है, एक केस में ये ऐसा बनेगा, और एक केस में ये ऐसा बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं। ठीक है, लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, इस डिस्टेंस को मैं x ले लेता हूं, सॉरी, इस डिस्टेंस को मैं अभी x ले लेता हूं। तो व्हेन x इज इक्वल टू L/4 वी गेट दिस। ठीक है, व्हेन x इज less than L/4 we get this, and when x is greater than L/4 we get this. ठीक है, अब यहां एक चीज ध्यान दो, एक केस में बेंडिंग मोमेंट जो है वो कहां पे मैक्सिमम आ रहा है? B पे। एक केस में बेंडिंग मोमेंट जो है वो B और C दोनों में से किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो बेटा,
जैसे जैसे मैं डिस्टेंस को चेंज करता जाता हूं, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस को चेंज करता जाता हूं, वैसे वैसे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, सबसे कम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस केस में आएगा? द बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी मिनिमम when the bending moment at B and C will be equal. अदरवाइज या तो B पे ज्यादा होगा या तो C पे ज्यादा होगा, है ना। बेंडिंग मोमेंट या तो B की तरफ जाएगा या तो C की तरफ जाएगा। सबसे कम बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहां मिलेगा? when MB is equal to MC. ओके, ये क्वेश्चन आपको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेगा। ओके, M maximum will be minimum. You will find this question in PYQs. If MB is equal to MC, जिस केस में MB और MC बराबर होंगे तब बेंडिंग मोमेंट जो रहेगा वो मिनिमम रहेगा। या तो फिर ये नीचे चला जाएगा इधर, या तो फिर ऊपर चला जाएगा, तो बेंडिंग मोमेंट आपका ज्यादा हो जाएगा, या तो बी पे या तो सी पे। ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, you will find this question in PYQ. When the maximum bending moment will be minimum. तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो कम से कम कौन से केस में आएगा? जब MB और MC दोनों बराबर होंगे। ठीक है, एंड रिमेंबर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हेन द सेंटर बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर विल बी 0, व्हेन x विल बी L/4। सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट 0 कब आएगा? जब x की वैल्यू क्या होगी? L/4। इसको याद कर लो, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड a lot of times in different exams। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन फंस सकता है। इज इट क्लियर? चलो, all this question, vertical reaction and moment at support AR क्या आएगा? What you need to do here, बेटा, in this case our beam is AB। अपनी बीम जो है वो लगभग AB है। इसको मैं एक आर्म की तरह देख सकता हूं, एक ब्रैकेट की तरह देख सकता हूं। दिस इज एन L शेप ब्रैकेट। So what did I tell you? Whenever you have a question situation like this, you need to transfer the force, right? तो आप ट्रांसफर कर दो फोर्स को, यहां से उठा के बीम पे यानी बी पे ट्रांसफर कर दो। सो इफ यू ट्रांसफर द फोर्स एट बी, यू विल गेट अ फोर्स पी एंड यू विल गेट अ मोमेंट एट बी। अब बी पे मोमेंट कैसा आएगा? व्हाट टाइप ऑफ मोमेंट यू विल गेट? मोमेंट कैसा आएगा? यू विल गेट एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। वेरी गुड, P इंटू L/2। ठीक है, अब रिएक्शन जो है वो कितना आएगा? ए पे व्हाट विल बी द रिएक्शन? P प्लस P/2 PL, P प्लस PL, सॉरी P प्लस P, सॉरी PL बोल रहा हूं, P प्लस P, तो ये हो जाएगा 2P। दिस इज टोटल लोड। ओके, दिस इज टोटल लोड, दिस इज नॉट लोड पर यूनिट लेंथ। ओके, एंड मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? व्हाट विल बी द मोमेंट? मोमेंट एट A विल बी इक्वल टू हाउ मच? कितना आएगा? T इंटू L माइनस P इंटू ये UDL लगेगा, सॉरी प्लस P इंटू L/2 एंड माइनस P इंटू L/2। तो ये कितना आ जाएगा? PL, है ना। तो 2P एंड PL। दिस इज टोटल लोड। ओके, ये UDL का टोटल लोड दिया है, ये UDL का टोटल लोड दिया है, नॉट लोड पर यूनिट लेंथ। ये ध्यान रखना, दिस इज द टोटल लोड ऑफ UDL, नॉट लोड पर यूनिट लेंथ। ओके, इज इट क्लियर? 2P एंड PL। चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो बेटा, एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन? ओके ओके, चलो। सो बेटा, this was all for today's class. We will have one more session on shear force and bending moment diagram.
ठीक है, एक और सेशन रख लेंगे, वी विल डू इट ऑन मंडे। एक और सेशन रखते हैं मंडे को, ठीक है? ठीक है, मंडे को दोपहर को रख लेते हैं 4 to 5। ओके, चलो चलो, यस, मंडे को 4 PM। ओके, ऑल राइट, वेरी गुड बेटा। इफ यू डोंट वांट टू मिस एनी ऑफ द DPP सेशन, देन डू फॉलो दिस टेलीग्राम चैनल। ओके, टेलीग्राम चैनल फॉलो करना मत भूलना। एंड the price of the subscription is going to hike from 20th of October। तो आपके पास अब सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन भी नहीं है, आज क्या हो गया, आज हो गया 17, 18, 19। ओके, 3 दिन है। सो टेक द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बिफोर 20th of October। यू स्टिल हैव चांस, आप अभी भी अपना सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हो हमारे साथ। ओके, and you have these awesome benefits with Unacademy Plus subscription: the live polling, the leaderboard, the live interaction, the dedicated doubt clearing sessions and doubt clearing groups you get, and you get the multiple batches, multiple branches and multiple exams। So even if you take the subscription right now, आपको लग रहा होगा कि गेट तो अभी फरवरी में हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बट बेटा you still have other exams और उनके भी बैचेस बनेंगे। There will be batches for DRDO, there will be batches for ISRO। आपको अलग अलग स्टेट के PSU के बैचेस भी मिलेंगे, so you can join those batches। okay, तो आपके पास अभी भी मौका है। if you still join, then you can get the benefit of the subscription। okay, so you know different subscription plans। तो जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान आपको आपके लिए सुटेबल लगता है, you can take that subscription plan using the code APPROVED10, get the 10% off and be connected with me in order to get my personal attention, my personal guidance and mentorship। Thank you so much, Shubham. Thank you so much। Anything you want to say? कोई और बात है? Thank you so much guys for joining। I hope you guys are enjoying the YouTube classes। Please do share the link of YouTube classes with your groups। ठीक है, YouTube क्लास बेटा बहुत मेहनत से हम लोग लगा रहे हैं, तो YouTube क्लास जो है उसकी एनर्जी बनी रहनी चाहिए और वो आप लोगों के हाथ में है। ओके, YouTube क्लास की एनर्जी बनी रहनी चाहिए, वो आप लोगों के हाथ में है। तो बेटा जब भी YouTube क्लासेस होती हैं, उनका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे जब भी डालता हूँ एडवांस में, तो आप उस लिंक को अपनी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं ना वो सफल हो। ये तभी सफल होगी जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठाएंगे। ओके, तो इसीलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, और नॉलेज शेयर करना बेटा बहुत अच्छी बात है। नॉलेज शेयर करना इज अ नोबल कॉज, सो टेक पार्ट इन दिस नोबल कॉज। आप लोग भी सहयोग कर सकते हैं इस चैनल को आगे बढ़ाने का। ठीक है, इस चैनल पे आप देख रहे हो डेली 8 से 10 वीडियोस जा रहे हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, अलग अलग टाइप के एग्जाम्स के लिए, अलग अलग टाइप के ऑडियंस के लिए हम लोग अलग अलग बैचेस लेके आ रहे हैं। हमने वीकेंड बैच लॉन्च किया है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए, हम लोगों ने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, बायंसी बैच अभी भी चल रहा है। बायंसी बैच में जो भी सब्जेक्ट आपके छूटे थे वो सारे कवर हो रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने बैच चालू किया है, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे, है कि नहीं? थैंक यू सो मच अभिजीत, थैंक यू सो मच बेटा। सो आप लोग इसी तरीके से कोऑपरेट करोगे, सपोर्ट करोगे, तो हम लोग और भी और ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे ऑन आवर यूट्यूब चैनल। ओके, सो कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप शोइंग योर लव लाइक दिस। ओके, सो वी विल मीट ऑन मंडे एट द सेम टाइम फॉर द सेकेंड DPP ऑफ shear force and bending moment diagram। ठीक है, yes, till then I'll take a leave। bye bye everyone, see you on Monday at 4 PM। ठीक है, मंडे को शाम को 4 बजे मिलते हैं। ठीक है, चलो, बाय एवरीवन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट डे, यस, बाय 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 एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।
Bye everyone. Share the link with your friends also. Okay, those of your friends who have missed this DPP, share the link with them. Okay, let them know about this DPP. Chalo. Bye everyone. Bye bye. Thank you so much. Thank you so much.